हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग with practice set 6.1 we are going to complete it in our this video. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन फ्यूचर यू विल ऑल्सो हैव टू बी डूइंग financial planning. So now let's learn this chapter in an easy method. I will explain you every topic. We will start first with an introduction. So let's start with it. If you are new on my channel, then please subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video, and also like this video. So let's now begin with our today's topic. Now let's start with our today's topic, that is chapter number 6 financial planning. And now let's first get introduced to this topic. Means what is financial planning? Why we must do it? Why we must accept it? These all questions would have arisen in your mind. Now let's get an answer to these questions by reading this conversation. This is between Anaga and her mother. Now let's read it. Anaga says, "Shall we buy computer?" Her mother says, "Okay, let's buy it next year." It would have been happening with you all also. That if you ask your mother that I want this, I want that, and she says, "Yeah, yeah, I will bring to you," but they only say yes, yes, yes. It takes. You then complain that you have been saying from yes, yes, yes from many days. You have not still bought. Why? Anaga says, "Mama, why not now?" Mother says, "Anaga, you don't know how expensive it is." This is also right. You children also don't know that how expensive things are. You just want it means want it. You should also understand the problem of your parents. How expensive things you are asking, you don't know. So you should always ask the thing after thinking about it. Then Anaga says, "You mean we will have to save up for it, right?" Her mother says, "Yes, that's the thing." So Anaga says that you mean that we should do savings. Now, savings you would have learned about it, that your mother or father would have also done savings. What is savings? Savings is nothing but to save money for future or to buy something in the future. Her mother says, "Yes, that's the thing. We will save money for our computer. Until next year, we will save that much money and buy it." So, this is how our parents manage our expenses. So, why should we do financial planning? The answer to this question is that financial planning is very important because we need money in future for emergency like health emergency, or many emergencies are there. Also for fulfilling your children's dreams or your own dreams, you will need money. So that's why we need to do financial planning. We often hear such conversations. हम बहुत बार ये सुनते हैं ऐसे सब conversations. आपके घर में भी ये सब होता ही होगा. Everyone requires money to meet a variety of needs. सभी को पैसे की ज़रूरत होती है. सभी को बहुत सारी needs होती है. We human beings are very greedy. Actually, our mind is greedy. It wants everything. How much you give, it will not count. But how much more it wants, it will count it. That is why, after spending on the necessities of the present, everyone tries to save money to make provisions for the future needs. So everyone have savings. Even your parents would have been doing savings for their future, for anything else. That is what we call saving money. In order to protect our savings or even to make them grow, we keep them as fixed deposits or by immovable properties such as a house, land, etc. That is what we call investment. Now, what is investment? Investment
what we do in investment. Actually, the savings that we have, we try to protect it, or we decide to keep them in fixed deposits in the bank, or we buy immovable properties, means जिन्हें हम हिला नहीं सकते. Immovable means not movable. So we buy properties like house. हम घर खरीद के रख लेते हैं हमारी सेविंग के पैसों से, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसे बेच सकते हैं. हम भले उसमें रह ना रहो, लेकिन अगर कभी पैसों की ज़रूरत पड़े, देन वी कैन सेल इट एंड गेट मनी. Okay, are you understanding? So your parents would have done like this. They would have kept a fixed deposit in the house, a fixed deposit in the bank, or they would have bought a property. Why they buy property? So that in the time of emergency they can also even use it to sell and take money, and even they can get rent if they have given it on rent for to someone. And this all, when we invest like this, it is called investment. Now let's learn about it. Every investor first spends the amount required to meet primary necessities and saves the remaining amount. तो जो प्राइमरी नेसेसिटीज मतलब हमारे घर खर्च आप बोल सकते हो, जो एकदम नेसेसरी होती है उनके लिए, उसके लिए पैसे तो चाहिए ही. दैट उसके लिए पहले पैसे निकाल लिया करते हैं, और जो बचा होता है वो हम सेविंग्स में डालते हैं. One also uses these savings to make a carefully considered investments. Okay? वो इन्वेस्टमेंट्स में भी डाला जाता है हमारी सेविंग्स. आपने सुना होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होती है, वहाँ पर पैसे लगाए जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, और फिर उनके इन्वेस्टमेंट्स करना, उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं. The main purpose of financial planning is protection and growth of the wealth. उसका मेन पर्पस क्या हुआ? हमारे पैसों की रक्षा और हमारे पैसे बढ़े. Financial planning is useful for making provisions for the predictable and unpredictable expenses that each of us has to meet in our life. So even you and me and everyone in our life have some problems, and also predictable and unpredictable expenses we have to be meet in our life. Means what I am talking about, I'm talking about the खर्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आगे जाके होने नहीं वाला है. Even in future you will have your children, and you have to give fees, more and more money for their studies. So that all are expenses that you have to face in your life. So now let's see some predictable and unpredictable expenses. Now what I mean by predictable expenses मतलब जो हमें पता होते हैं कि ऐसा, हाँ हमें एक ना एक दिन ये करना ही है, या फिर ये होना ही वाला है. और अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो हमें नहीं पता होता है और अचानक से आ जाते हैं. जैसे कि आप हेल्थ प्रॉब्लम बोल सकते हो, अचानक से खर्चा आ जाना, इमरजेंसी. प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में पहले जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर देम. हमें पता होता है, आपके पेरेंट्स को भी पता होगा कि वो हाउ मच मनी इट विल रिक्वायर फॉर योर चिल्ड्रन इन फ्यूचर, सो दे शुड कीप सेविंग्स फॉर द चिल्ड्रंस मनी फॉर हिज स्टडीज़. अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में आप देख सकते हो नेचुरल डिज़ास्टर्स. अब कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से बहुत सारे कोई इंजरी हो गई या फिर कोई नुकसान, तो दैट कम्स इन अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस. एंड प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में और भी आते हैं, जैसे कि कैपिटल फॉर अ प्रोफेशन और बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तभी हमें आगे अच्छा रिजल्ट मिलता है. और फिर बाइंग अ व्हीकल, कोई आपको कार खरीदनी है, और यू हैव टू बाय एनी व्हीकल, यू नीड टू डू सेविंग्स. देन बाइंग और बिल्डिंग अ हाउस, हाँ अपना घर करवाने के लिए या फिर उसे खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए. ऑल्सो यू नो ऑल दिस थिंग्स के, हाँ वी नो वी नीड टू सेव फॉर दिस थिंग्स, दिस ऑल थिंग्स
that we are going to do in our life, we are going to buy in our life. अनप्रडिक्टेबल एक्सपेंसेस में मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर अ फैमिली मेम्बर, फैमिली में किसी को अचानक से तबीयत ख़राब हो जाना, तो फिर हमें उसके लिए भी एक्सपेंसेस यानी कि पैसों की ज़रूरत होती है. दैट इज़ अनप्रडिक्टेबल. हमने सोचा ना हो तभी अचानक से आ जाना. फिर भी हमारे पेरेंट्स ऑब्वियसली इमरजेंसी के लिए अलग से सेविंग्स करते होंगे. लॉस ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो जाना. फिर सडन डेथ, दैट इज़ ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस. सो ये सब एक्सपेंसेस आपके भी लाइफ में आपको आगे जाके होंगे फ्यूचर में. तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है ताकि इन दोनों को ही ओवरकम किया जाए. अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस आ जाए फिर भी हम लोग उसे ओवरकम कर सकें और प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस के लिए पहले से तैयार रहे. नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट सेविंग्स. It is safe for our own benefit to keep our savings safe and to make them grow. Our savings remain safe in a bank or in a post office. Money saved in a bank is also useful for cash minus transactions. This way, we do not have to carry large amounts of cash or worry about losing it or getting it stolen. So, it is beneficial that our savings are safe and we may increase them little bit and more. Our savings always remain safe in a post office or a bank. You would have learned about post office scheme. Also, bank में fixed deposit में save किए जाते हैं. Money saved in a bank is also useful for cash minus transactions. मतलब छोटे छोटे पैसे, हम लोग को सब कुछ नहीं चाहिए साथ में, हमें थोड़ा थोड़ा ही चाहिए. सो दिस वे वी डू नॉट हैव टू कैरी लार्ज अमाउंट्स. हमारे पास घर में भी बड़े बड़े अमाउंट्स नहीं होंगे तो ताकि हमें चोरी के डर ना रहे, हमारे पैसे कहीं चोरी ना हो जाए, ये बहुत डर होता है ना. तो इफ़ दे आर इन बैंक दे आर सेफ. इफ़ द मनी वी गेट अर्न और वी गेट is in the form of cash and we keep it as it is without investing it, its value diminishes with time. अगर हमारे पास हमें जो मनी हमने कमाया है या फिर हमें जो मिला वो अगर हम उसे सिर्फ कैश के फॉर्म में ऐसे रखें और जैसा है वैसे ही रखें और हम लोग वहाँ उसका कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, उसका कुछ यूज़ ना करें, तो फिर उसकी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होती. उसकी वैल्यू डिमिनिश मीन्स कम होती जाती है टाइम के साथ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ टुडे you can buy 2 pencils for 10 rupees. A few years hence you may be able to buy only one for that amount. बराबर है ना. अब अगर एग्जांपल है कि अगर आप 2 पेंसिल 10 रुपये में मिलती है आपको आज, कुछ साल बाद वो 2 ही पेंसिल आपको 20 रुपये भी मिल सकती है. मतलब एक पेंसिल का 10 रुपये हो जाएगा. तो द प्राइस विल इंक्रीज. तो जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा लेकिन आपका यहाँ पर अमाउंट तो इंक्रीज नहीं हो रहा, अगर आप ऐसे ही रखे रहोगे तो फिर क्या फ़ायदा आगे जाके आपको. अगर वो बैंक में करोगे सेविंग्स उसके फिक्स डिपॉजिट तो फिर वो शायद वो भी इंक्रीज होते रहेंगे, तो फिर आगे जाके वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, प्राइस इंक्रीज हो गए तो वो एक मैच हो जाएगा और आप तभी भी खरीद सकोगे. If the amount invested is used for expanding a business, to start an industry or other such purposes, it contributes to the growth of the national production. अगर वो जो अमाउंट है हमारे पास उसको हम लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो contributing to the growth of national production. हमारे नेशनल प्रोडक्शन को भी कंट्रीब्यूट करता है. If some part of the income is spent for a socially useful cause, everyone benefits from it in the long run. अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का पार्ट आप सोशल काम के लिए यूज़ कर लेते हो, अच्छे काम के लिए, तो वो भी सोशल नीड्स को बेनिफिट करता है, हमारे सोसाइटी को बेनिफिट करता है. After spending on necessities, it is beneficial to limit spending on luxuries and to save if instead of for education, medical treatment, etc. सो हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके ऊपर सब कुछ खर्च करने के बाद जो भी बचा है वो आप थोड़े आपके लग्जरीज यानी कि आपको घर के लिए कुछ सामान अच्छा यानी कि हमें कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नया नया खरीदना है तो डेट ऑल लग्जरीज इफ यू वांट यू कैन यूज़ फॉर देम. इट इज़ बेनिफिशियल सो दैट योर लाइफ इज़ ऑल्सो हैविंग समथिंग न्यू.
so that it is not boring and you are just planning for your future, then your present will be boring. So you should not everything go for future, you should keep for future, but you should also buy something new for your present and make your present very special, not only your future. Investment. Now let's learn about investment also. Investments are of many types. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, आपने सुना भी होगा. Investors often favor institutions like banks and postal departments for investing their money because it is safe there. तो मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स आपको बैंक्स में दिखते होंगे, बैंक्स और पोस्टल डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पता है कि वहाँ पर सब कुछ सेफ रहेगा. देयर इज अ सर्टेन रिस्क इन इन्वेस्टिंग मनी इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा. आपको पता ही होगा शेयर मार्केट के बारे में, आपके फादर्स भी करते होंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट. तो वहाँ पर बहुत रिस्क होता है शेयर मार्केट में, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है. देयर इज़ अ रिस्क देयर, but then also people invest there to increase their money. That is because this money is invested in a business or industry if that incurs a loss, and the investor suffers the loss too. तो यहाँ पर इन्वेस्टर भी लॉस सफ़र करेगा, और ये इन्वेस्ट कहाँ जाता है, शेयर मार्केट में किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी ये लॉस. On the other hand, if it makes a profit, the money is safe and there is the opportunity to get a dividend too. और अगर शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कमाने को भी मिल जाता है. सो दैट इज़ रिस्क, सब कुछ रिस्क पे वहाँ पे चलता है. एन इन्वेस्टर मस्ट टेक टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, नेमली द रिस्क एंड द गेन. तो जो रिस्क है और जो मिलने वाला है वो हमेशा ध्यान से सोच के ही फिर इन्वेस्ट करना चाहिए. ऐसे ही जहाँ पर भी इन्वेस्ट नहीं करना देना चाहिए, आपको देखना है कि कितना मिल रहा है और कितना रिस्क है. रिस्क ज़्यादा है और मिलना कुछ कम है, मिलने वाला कुछ बहुत कम है, तो आपको इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है. यू शुड सर्च फॉर अनदर प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट. इट इज़ पॉसिबल टू मेक बिग गेन्स बाय टेकिंग ग्रेटर रिस्क. बड़े बड़े बहुत बड़ा बड़ा कमा सकते हो आप बाय टेकिंग बिगर बिगर रिस्क. तो बहुत सारे बिजनेसमैन से जो रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा गवा भी लेते हैं और कमा भी लेते हैं. तो दैट इज़ दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर रिस्क. However, it must be kept in mind that the greater risk can also lead to greater loss. तो बड़ा रिस्क हमें बड़ा घाटे तक भी लेके जा सकता है. We can get a greater loss also. तो पूरी कंपनी भी डूब सकती है और पूरी कंपनी उग भी सकती है और ज़्यादा ब्रांचेस भी खुल सकते हैं. सो देयर कैन हैपन एनीथिंग, बट पीपल हैव टू टेक रिस्क. रिस्क तो हर चीज़ में होगा आपकी लाइफ में, नॉट ओनली इन इन्वेस्टमेंट्स, इन योर लाइफ, इन मैनी थिंग्स यू हैव टू टेक चॉइसेस, रिस्क. दिस ऑल विल कंटिन्यू. Now let's go on with practice set 6.1. After we have learned so many things, risks, investments, so many things I have taught you, and I hope that you understood them and this will be helpful in your life also, that you don't take any unwanted risk in your life. Now let's start with practice set 6.1. प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ एंड सेव्स ₹120. हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली. अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि अलका अपने मंथली सैलरी में से 90% स्पेंड करती है अपने घर खर्च पे, घर के काम के लिए, और हर महीने वो उसमें से ₹120 बचा लेती है. तो अभी कितनी क्या सैलरी होगी उसकी, ये हमें फाइंड आउट करना है. ताकि हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें दी गई है कि वो कितना स्पेंड करती है और कितना सेव करती है. अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूँ. पहले सोल्यूशन में हमें लिखना है कि लेट अलकास मंथली इनकम भी ₹X. अब हम उसकी मंथली इनकम को ₹X धार लेते हैं, और उसके बाद अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ. सो 90% तो स्पेंड कर देती है हर महीने जितना कमाती है उसमें से. तो एक्स में से 90% निकल गया, मीन्स अमाउंट स्पेंड बाय अलका इज इक्वल्स टू 90% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स इज द मंथली इनकम, जो यानी कि सैलरी भी बोल सकते हो, मंथली सैलरी जो उसको मिलती है उसमें से वो 90% स्पेंड करती है. तो देयरफॉर 90/100 इंटू एक्स. 90% निकालना मतलब क्या है, ये परसेंटेज 100 बन सकता है. तो 90/100 इंटू एक्स, दैट इज
अभी यहाँ पर से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो कैंसिल, अब 9/10 बचता है। 9/10 को हम लिख सकते हैं 0.9। जब नीचे एक ज़ीरो हो तो ऊपर पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा और ऊपर भी एक ही ज़ीरो होगा, तो 0.9x, 0.9 यहाँ पर आ गया और इंटू एक्स इज 0.9x। तो ये है अमाउंट स्पेंड बाय अलका। नाउ सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो स्पेंड कर दिया, और ये इनकम, इनकम जितनी है उसमें से हम लोग जो स्पेंड किया वो माइनस करेंगे। तो अभी सेविंग्स तो हमारे पास दी गई है 120 करती है, इनकम हमने x धारी है, और एक्सपेंडिचर जो हो यानी कि अमाउंट स्पेंड बाय अलका हमें यहाँ पर 0.9x मिला। तो 120 इज इक्वल्स टू x माइनस 0.x। अब x माइनस 0.9x करेंगे तो वो हो जाएगा 0.1x। ओके, x माइनस x क्या है यहाँ पर 1, तो दिस इज 1x माइनस 0.9x। तो 0.9 तो छोटा हुआ ना 1 से, तो 1 माइनस 0.9 इज नथिंग बट 0.1। अब 0.1x आ गए, 120 इज इक्वल टू 0.1x। अब x विल बी इक्वल टू 120 अपॉन 0.1x, नॉट सॉरी 0.1। तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 0.1, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर जाके डिवीजन में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट निकाल देते हैं और ऊपर नीचे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पॉइंट निकल जाता है ना, तो हमें ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट निकालने के लिए हमको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब आप बोलोगे 10 से ही क्यों, 100 से भी कर सकते थे। अभी 100 से इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो आपको ये डिपेंड करता है कि आपका डेसिमल कहाँ पर है। अब यहाँ पर ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है उस पर डिपेंड करेगा। एक है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 2 होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, और 3 होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। सो 120 अपॉन 0.1 विल बी इक्वल टू 120 इंटू 10 अपॉन 0.1 इंटू 10। अभी इसको हम लोग पॉइंट निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी वही करना पड़ेगा। दैट इज़ द रूल कि जो भी डिनोमिनेटर के साथ करेंगे वो न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ता है। सो 120 इंटू 10 इज 1200 एंड 0.1 इंटू 10 इज 1। सो वो तो लिखेंगे तो नहीं तो चलेगा। तो अलका गेट्स ₹1200 मंथली, ये उसको मंथली मिलता है। Question number 2 of practice 6.1 is Sumit borrowed a capital of ₹50,000 to start his food products business. अब उसका ये उसने कैपिटल है, कैपिटल मीन्स लार्जर इन्वेस्टमेंट्स और larger amounts for starting a business. In the first year, he suffered a loss of 20%. He invested the remaining capital in a new sweets business and made a profit of 5%. How much was his profit or loss computed on his original capital? तो अभी यहाँ पर देखिए उसका कैपिटल है ₹50,000, वो इन्वेस्ट करता है फूड प्रोडक्ट्स बिजनेस में। अब उसमें उसको 20% लॉस होता है, उसके लॉस हो जाता है 20%, और फिर वो वहाँ से निकाल के अपना कैपिटल बाकी का जितना भी बचा होता है 20% लॉस होने के बाद वो सब वो इन्वेस्ट कर देता है वहाँ से निकाल कर स्वीट्स की दुकान स्वीट्स के बिजनेस में, और वहाँ पर उसे प्रॉफिट होता है 5%। तो अभी हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल, मतलब उसके ओरिजिनल कैपिटल पे कितना उसे प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो ओरिजिनल कैपिटल बोरोड बाय सुमित वाज ₹50,000, करेक्ट, ये हमको दिया गया है गिवन, आप बोल सकते हो। सुमित सफर्ड अ लॉस ऑफ 20% इन हिज फूड प्रोडक्ट्स बिजनेस, ये भी हमको बोला गया कि उसको 20% का तो लॉस हो गया फूड प्रोडक्ट बिजनेस में, और उसका जो पहले साल में लॉस सफ़र हुआ था वो है 20% ऑफ 50,000। तो अब 20 अपॉन 100 इंटू 50,000, हमको 20% निकालना है ना 50,000 का, तो 100 0 कैंसिल, यहाँ पर भी 0 कैंसिल, तो यहाँ पर बचता है 20 इंटू 500, दैट इज़ नथिंग बट 10,000। तो 10,000 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ उसके पहले बिजनेस में। रिमेनिंग कैपिटल कितना हुआ बच्चा, मतलब 10,000 का लॉस हुआ, तो ओरिजिनल कैपिटल माइनस लॉस सफर्ड दैट इज 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू ₹40,000 का बाकी का रिमेनिंग कैपिटल। अब सुमित इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल दैट इज ₹40,000 इन अ न्यू स्वीट्स बिजनेस, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ओके, तो अभी उसको 5% प्रॉफिट हुआ। अब 40,000 का 5% कितना हुआ, तो 5 अपॉन 100 इंटू ₹40,000,
0 0 cancel, 0 0 cancel. 5 into 400 is rupees 2000. अब उसे प्रॉफिट हुआ 2000 का. The new capital with Sumit after the profit in sweets business will be 40,000 plus 2,000, that is 42,000. यानी कि जो उसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट था पहले वाला ओरिजिनल कैपिटल, उसमें से उसे 42,000 वापस मिले, लेकिन फिर भी 8,000 का नुकसान हुआ. Since the new capital is less than the original capital, we can conclude that Sumit suffered a loss. अब हमें इससे पता चल सकता है कि सुमित को लॉस हुआ. हमें पहले से क्वेश्चन से ही अंदाज़ा आ गया था मुझे भी कि लॉस ही हुआ होगा ना, क्योंकि 5%, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि उसे 5% प्रॉफिट हुआ बाद में, और पहले लॉस हुआ 20%. सो 20% लॉस में से 5% सिर्फ प्रॉफिट, तो बहुत कम हो जाता है ना. तो सुमित सफर्ड लॉस. अब कितना लॉस उसने सफ़र किया? पर फर्स्ट टोटल लॉस ऑन ओरिजिनल कैपिटल इज ओरिजिनल कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल, दैट इज 50,000 माइनस 42,000, दैट इज 8,000. तो उसने 8,000 अपना लॉस सफ़र किया. अब परसेंटेज ऑफ लॉस निकालते हैं हम लोग. टोटल लॉस अपॉन ओरिजिनल कैपिटल इन 200. दिस इज फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर. लॉस अपॉन द कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल, in 200, that is 8,000 upon 50,000 in 200, that is 16%. कैसे? 0 0 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 0 कैंसिल, फिर यहाँ पर के बाकी के 2 कैंसिल, और यहाँ पर भी 2 कैंसिल, फिर 80 यहाँ पर, और यहाँ पर 5 है. 5 1 ज़ा और 5 16 ज़ा. 16% लॉस उसने सफ़र किया of the original capital. Now let's see the question number 3 of practice at 6.1. That is, Nikhil spent 5% on his monthly income on his children's education. Then तो उसने, निखिल है यहाँ पर, जो 5% स्पेंड करता है अपने बच्चों के एडुकेशन पे, और उसने इन्वेस्टेड किया 14% इन शेयर्स, deposited 3% in a bank, and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his income that month? मतलब उस महीने में उसकी इनकम जो हुई, उसमें से उसने 5% अपना बच्चों के एडुकेशन पे स्पेंड किया, फिर बाकी के 14% उसने शेयर्स पे स्पेंड किया, शेयर में इन्वेस्ट कर दिए. 3% उसने बैंक में स्पेंड किया, बैंक में डिपॉजिट किए, और 40% उसने अपने डेली एक्सपेंसेस यानी कि घर खर्च के लिए स्पेंड किया. और उसके बाद उसके पास 19,000 बचे हुए थे फिर भी. सो व्हाट वाज हिज इनकम? कितनी इनकम हुई थी मतलब? अब पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल बी रुपीज एक्स ले लिया. अब निखिल इन्वेस्टेड 14% इन शेयर्स एंड डेपोजिटेड 3% इन अ बैंक. उसने 14% शेयर्स में इन्वेस्ट किया और 3% उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. तो अभी टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 14% प्लस 3%. अब हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाले ही परसेंटेज निकाल रहे हैं. एडुकेशन में जो स्पेंड किया वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, और उसने जो घर खर्च के लिए भी स्पेंड किया 40%, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं था. तो 14% इन शेयर्स एंड 3% इन बैंक, दिस टू आर इन्वेस्टमेंट्स. तो टोटल इन्वेस्टमेंट में वो दोनों काउंट होंगे. तो 14% प्लस 3% ऑफ एक्स हुआ ना. अब देखो हमें 14% प्लस 3% ऑफ एक्स मतलब मंथली इनकम है उसकी, तो दैट इज 17% ऑफ एक्स इज इन्वेस्टमेंट ऑफ, इज द टोटल इन्वेस्टमेंट जो उसने उस महीने किया. सो 17% ऑफ एक्स, दैट इज 17 अपॉन 100 इंटू एक्स, दैट इज 0.17x. नीचे 2 0 है और ऊपर 2 नंबर है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 यहाँ पर डालना पड़ा. जब नीचे 2 0 होते हैं तो ऊपर हमको 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है. अब 2 ही डिजिट है तो यहाँ पर 0 आ गया, तो 0.17 और इंटू एक्स इज 0.17x. तो क्या किया हमने, टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला. तो टोटल इन्वेस्टमेंट का जो भी परसेंटेज था 14% प्लस 3% वॉज इन्वेस्टमेंट में गए थे उसके, दैट इज 17% उसके टोटल इन्वेस्टमेंट में गए. तो उसकी मंथली इनकम में से कितने इन्वेस्टमेंट में गए वो निकालने के लिए 17% ऑफ एक्स तो उसका मंथली इनकम है. तो 17 अपॉन 100 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 0.17x. तो ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है. Nikhil spent 5% on his children's education and used 40% for his daily expenses.
सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ इज इक्वल्स टू 5% प्लस 40% ऑफ एक्स. अब टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल अमाउंट दैट ही स्पेंड, उसने टोटली कितना स्पेंड किया वो अब अलग से निकालते हैं हम लोग. 5% और वो 40% उसमें इंक्लूड किया जाएगा. ऐसे हमने दो अलग किए, वो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई, टोटल एक्सपेंडिचर. सो 5% प्लस 40% ऑफ एक्स. एक्स जो उसका मंथली इनकम है उसमें से 45% उसने स्पेंड किया उसके एक्सपेंडिचर में, दैट इज एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस. तो वो कितना हुआ, मतलब 45/100 इंटू एक्स, दैट इज 0.45x. So this we got as total expenditure and this is his total investment. तो ये दोनों हमको मिल गए. और कितना अमाउंट उसके पास बच गया था, 19,000 हमें बोला गया है. अब अमाउंट लेफ्ट विथ निखिल का क्या होगा, इनकम माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल एक्सपेंडिचर. अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट है और टोटल एक्सपेंडिचर है उसका टोटल, और उसमें से जो इनकम है रोज़ की वो माइनस करेंगे, तभी हम लोग को मिलेगा जो अमाउंट बचा यानी कि 19,000. तो इस तरह हमने एक फॉर्मूला बना दिया. अमाउंट लेफ्ट विद निखिल विल बी इनकम माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल एक्सपेंडिचर. तो 19,000 दैट इज द अमाउंट लेफ्ट विद निखिल, हमको पता ही गया, इज इक्वल्स टू एक्स दैट इज इनकम माइनस 0.17x दैट इज टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस 0.45x दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर. इन्हें पहले प्लस कर देते हैं. 0.62x and x minus 0.62x is 0.38x. 19,000 upon 0.38 that is 38. So x is equals to 19,000 upon 0.38. मैंने आपको बोला था पॉइंट के बाद दो नंबर है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट निकालने के लिए, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो देयरफॉर 9 यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 19 लाख अपॉन 38 दैट इज 50,000. डिवाइड करेंगे तो मंथली इनकम ऑफ निखिल इज रुपीज. Now let's do the question number 4 of exercise 6.1, that is Mr. Syed kept rupees 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested rupees 1 lakh 20,000 in a mutual fund for 2 years, and after 2 years Mr. Fernandez got rupees 1,92,000. whose investment turned out to be more profitable. So यहाँ पर देखिए हमें बोला गया कि मिस्टर सैयद है, उन्होंने 40,000 बैंक में डिपॉजिट किए और उसका 8% कंपाउंड इंटरेस्ट उसको 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उसे वो वापस मिला. और मिस्टर फर्नांडिस ने इन्वेस्ट किया 1,20,000 इन म्यूचुअल फंड और 2 साल बाद उसके वो 1,20,000 हो गए 1,92,000 बन गए. तो किसका प्रॉफिट ज़्यादा था किसके इन्वेस्टमेंट में, तो वो यहाँ पर आप देख ही सकते होंगे. उसे हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो हम लोग को पहले उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा. तो सोल्यूशन बिगिंस. मिस्टर सैयद ने क्या किया, केप्ट रुपीज़ 40,000 इन अ बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, जैसे कि हमको बोला गया है. तो ये रुपीज़ 40,000 हुआ हमारा प्रिंसिपल, 8% इज़ द रेट and 2 years is the time period. So 8% is the rate of compound interest. Okay, so हमारे पास ये तीनों ही चीज़ें मिल गई. आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट याद है, आपको लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ाया गया है. सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हमने जो बैंक में डिपॉजिट किया है उसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है जो हर साल इंक्रीज होता रहता है, लेकिन वो एक होता है फिक्स्ड अमाउंट. और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई. और कंपाउंड इंटरेस्ट का असल में फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज़ हियर. सो वही करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर यूज़ भी. यहाँ इस सम के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वैल्यूज डाल देते. प्रिंसिपल हमारे पास है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8, एन इज दैट इज टाइम पीरियड दैट इज 2 साल है ना, एंड माइनस 1. 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू 2 माइनस 1. अभी इसका क्या करना है हमें यहाँ पर देखिए.
समझिए हम, वन इज नथिंग बट वन अपॉन वन, वन के नीचे भी एक डिनोमिनेटर है, डेट इज वन। अब वन अपॉन वन प्लस 8/100 करना है हमें, तो क्या करेंगे हम लोग, हम डिनोमिनेटर वन अपॉन वन का सेम होगा तभी ही हम लोग इन दोनों को एडिशन कर पाएंगे। तो वन अपॉन वन का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे वन है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 × 100 नीचे कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला जो 1 होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा 100 से, इट विल बिकम 100/100 प्लस 8/100। ओके, नाउ हम इसे एडिशन कर सकते हैं, तो 100 + 8/100 हो जाएगा, दैट इज 108/100। तो हमें यहाँ पर मिलता है 108/100, जिसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे पहले और उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करके 0.08 मिलेगा। सो 40,000 × 1 + 0.08 द होल स्क्वायर -1। अभी ये देखिए 1 + 0.08 इज नथिंग बट 1.08। हाँ, और उसका ये स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। अब 40,000 इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1.1664। ओके, और उसमें से अगर 1 माइनस करेंगे जो कि यहाँ पर है फॉर्मूला के हिसाब से -1, तो ये 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 0.1664। हाँ, तो 40,000 × 0.1664। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 को 0.1664 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा ₹6,656। कैसे देख सकते हैं आप, 1,664 अपॉन यहाँ पर ये पॉइंट हटाने के लिए जितने नंबर है उतने ज़ीरो आएंगे, यानी कि 10,000 आएगा। ये 1 2 3 4 0 4 नंबर है तो 4 ज़ीरोस आएंगे और 4 ज़ीरो 10,000 में होंगे, तो 1,664 अपॉन 10,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 40,000 से। तो 10,000 के 4 ज़ीरो, इसके 4 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और 1,664 × 4 इज 6,656। तो दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट वी गॉट। अब मिस्टर सैयद इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट इतना है उनका, तो अभी उनका परसेंटेज निकालना है। तो इंटरेस्ट हमको ये दिया गया है, हमें इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 6,656 और उन्होंने इन्वेस्ट किया था 40,000, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 0 कट और इसे डिवीजन करेंगे तो हमें मिलता है 16.64। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट मिस्टर सैयद गॉट। उसको प्रॉफिट इतना हुआ 2 साल में उसने इन्वेस्ट किया था उसमें, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, मार्क कर देंगे। अब मिस्टर फर्नांडिस का केस देखते हैं हम लोग। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर फर्नांडिस इन म्यूचुअल फंड इज इक्वल्स टू ₹1,20,000। तो इसका मतलब है जो इन्वेस्ट किया है उसने अमाउंट, वो है ₹1,20,000। अब 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए। अब अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर फर्नांडिस, उसको वापस कितने मिले थे, 1,92,000 हमको बोला गया था 2 साल बाद। तो प्रॉफिट उसका कितना हुआ है, 1,92,000 को अगर हम लोग 1,20,000 से माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है टोटल। तो हमने वो माइनस किया तो होता है 72,000 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब उसका परसेंटेज निकालते हैं, वो निकालने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला है प्रॉफिट अर्नड अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड, दैट इज 72,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100, 0 0 0 सारे कैंसिल कर देंगे और फिर हमें आंसर मिलेगा 60%। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन, उसको 60% प्रॉफिट हुआ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में मिस्टर सैयद को प्रॉफिट हुआ सिर्फ 16.64% और मिस्टर फर्नांडिस को प्रॉफिट हुआ 60%। तो किसको ज़्यादा हुआ, Mr. Fernandez. So investment of Mr. Fernandez turned out to be more profitable. Now let's see the next question. That's question number 5. Samira spent 90% of her income and donated 3% for socially useful causes. If she was left with rupees 1,750 at the end of the month, what was her actual income? So उसने 90% income spend की अपनी, उसने 90% स्पेंड कर दी और बाकी की 3%, बाकी की 10% में से 3% उसने सोशली यूजफुल कॉसेस, सोशल वर्क के लिए स्पेंड कर दी। अब उसके पास ₹1,750 बच गए हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। तो व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम? So to let the actual income of Samira be rupees X.
Samira spent 90% of her income and donated 3%. So totally Samira's total expenditure में आ जाता है वो दोनों ही. So that is 90% plus 3% of X. That is 93% of total income. That is 93 upon 100 into X. That is 0.93X. Now savings is equals to income minus expenditure. So therefore 1750 is equal to be, ये उसके savings से लास्ट में जितने बचे, is equals to income is X minus expenditure is 0.93X. अभी if X minus 0.93X करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा. हम इसे माइनस कर और यहाँ पर इसे डिवाइड करवा देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा और ये सम भी कंप्लीट हो जाएगा. सो आई होप कि आपको ये सम भी समझ में आ गया होगा और ये प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, प्रैक्टिस सेट 6.1. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिस सेट 6.2 भी करेंगे. तो चलिए, अभी अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे इस वीडियो को. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.